السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی دوسری کتاب شروع ہونے والی ہے تعلیم الاسلام کی۔ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ، دوسری کتاب، مصنف حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ دو کا پہلا شعبہ، جس کا مشہور نام ہے تعلیم الایمان یا اسلامی عقیدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہیں کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کا مطلب یہ ہے گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر، جن کا بیان اس ایمان مفصل میں ہے، جو یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کا معنی یہ ہے: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، پیغمبروں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ نمبر 5، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن یعنی دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہی ساری دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے،
नंबर 10 वह खुद ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। नंबर 11 उसको किसी ने पैदा नहीं किया। नंबर 12 न उसका बाप है, न बेटा, न बेटी, न बीवी, न किसी से उसका रिश्ता नाता, वह ऐसे सब रिश्तों से पाक है। नंबर 13 सब उसके मोहताज हैं, वह किसी का मोहताज नहीं। नंबर 14 वह बेमिसाल है, कोई चीज उससे मिलती जुलती या उस जैसी नहीं। नंबर 15 वह सारे ऐबों से पाक है। नंबर 16 वह मखलूक जैसे हाथ, पांव, नाक, कान और शक्ल सूरत से पाक है। नंबर 17 उसने फरिश्तों को पैदा करके दुनिया के इंतजामों और खास खास कामों पर लगा दिया है। नंबर 18 उसने अपनी मखलूक को सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर भेजे कि लोगों को सच्चा मजहब सिखाएं, अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं। सवाल मलाइका के ऊपर। सवाल फरिश्ते कौन हैं? जवाब फरिश्ते खुदा ताला की एक मखलूक हैं, नूर से पैदा हुए हैं, हमारी नजरों से ओझल हैं, ना मर्द हैं ना औरत, खुदा की नाफरमानी नहीं करते, जिन कामों पर खुदा ताला ने उन्हें लगा दिया है उन्हीं में लगे रहते हैं। सवाल फरिश्ते कितने हैं? जवाब फरिश्तों की गिनती खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ इतना हमें मालूम है कि फरिश्ते बहुत हैं और उनमें से 4 फरिश्ते खास तो और मशहूर हैं। सवाल खास और मशहूर मशहूर 4 फरिश्ते कौन कौन से हैं? नंबर 1 हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की किताबें और हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। नंबर 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, एक तरह का बाजा फूकेंगे। नंबर 3 हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम जो बारिश का इंतजाम करने और मखलूक को रोजी पहुंचाने पर लगे हैं। नंबर 4 हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की जान निकालने पर लगे हैं। खुदा ताला की किताबें। सवाल खुदा ताला की किताबें कितनी हैं? जवाब खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें पैगंबरों पर उतरी, मगर बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफे कहते हैं। 4 किताबें मशहूर हैं। 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? सवाल 4 मशहूर आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं और किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? नंबर 1 तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 4 कुरान मजीद जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सवाल सहीफे कितने हैं और किन किन पैगंबरों पर उतरे? जवाब सहीफों की गिनती मालूम नहीं। हाँ कुछ सहीफे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर और कुछ हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर और कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उतरे। इनके अलावा और भी सहीफे हैं जो कुछ दूसरे पैगंबरों पर उतरे। खुदा के रसूल पैगंबर अलैहिस्सलाम। सवाल रसूल कौन होते हैं? रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। खुदा ताला उन्हें अपने बंदों तक हुक्म पहुंचाने के लिए भेजता है। वे सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से मौजिज़े दिखाते हैं, खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुंचा देते हैं, उनमें कमी बेशी नहीं करते, न किसी पैगाम को छुपाते हैं। सवाल नबी के क्या माने हैं? नबी के भी यही माने हैं कि वह खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, खुदा ताला के हुक्म बंदों तक पहुंचाते हैं, सच्चे होते हैं, झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्मों को खुदा ताला के हुक्मों में कमी ज्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। सवाल नबी और रसूल में कुछ फर्क है या दोनों में के एक माने हैं? जवाब नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। वह यह है कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसकी नई शरीयत और किताब जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो। वह यह है कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, और नबी हर पैगंबर को और नबी हर पैगंबर को कहते हैं, चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वह पहली शरीयत और किताब का ताबे हो। सवाल क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? जवाब नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही नबी बनता है। मतलब यह है कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, खुदा ताला की तरफ से यह दर्जा दिया जाता है। सवाल रसूल और नबी कितने हैं?
जवाब, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक ठीक गिनती खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे, हम उन सबको हक पर और रसूल मानते हैं। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर कौन है? सबसे आखिरी पैगंबर कौन है? जवाब, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएगा या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत यानी कि नबी होना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। आपके बाद जो आदमी पैगंबरी का दावा करेगा वह झूठा होगा और झूठा है। सवाल, रसूलों में सबसे बड़ा दर्जा किस रसूल का है? जवाब, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों और रसूलों में सबसे बड़े दर्जे के और बुजुर्ग हैं। खुदा ताला के तो आप भी बंदे और ताबेदार हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका दर्जा सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है। कयामत का बयान। सवाल, कयामत का दिन किस दिन को कहते हैं? जवाब, कयामत के दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारे आदमी और जानदार मर जाएंगे और सारी दुनिया मिट जाएगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, यानी हर चीज टूट फूट कर मिट जाएगी। सवाल, सारे आदमी और जानदार कैसे मर जाएंगे? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, उसकी आवाज ऐसी डरावनी और सख्त होगी कि उसके सदमे से सब मर जाएंगे और हर चीज टूट फूट कर मिट जाएगी। सवाल, क़यामत कब आएगी? जवाब, क़यामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुमे का दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बता दी हैं। इन निशानियों को देखकर क़यामत का करीब आ जाना मालूम हो सकता है। सवाल, क़यामत की निशानियां क्या हैं? जवाब, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे, नंबर एक, जब दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे। नंबर दो, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां और उन पर सख्तियां करने लगे। नंबर तीन, अमानत में खयानत होने लगे। नंबर चार, गाने बजाने नाच रंग ज्यादा होने लगे। नंबर पांच, पिछले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगे। नंबर छह, बेपढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे लोग सरदार बन जाएं। नंबर सात, चरवाहे वगैरह छोटे दर्जे के लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे। नंबर आठ, ऐसे लोगों को जो काबिल ना हो बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे। तो समझो क़यामत आ गई। तक, तकदीर का बयान। सवाल, तकदीर किसे कहते हैं? जवाब, हर बात और अच्छी बुरी चीज के लिए खुदा ताला के इल्म में एक अंदाजा मुकर्रर है और हर चीज के पैदा करने से पहले खुदा ताला इसे जानता है। खुदा ताला के इसी इल्म और अंदाजे को तकदीर कहते हैं। कोई अच्छी या बुरी बात खुदा ताला के इल्म और अंदाजे से बाहर नहीं। मरने के बाद जिंदा होना। सवाल, मरने के बाद जिंदा होने से क्या मतलब है? जवाब, क़यामत में सब चीजें मिट जाएंगी, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सब चीजें मौजूद हो जाएंगी, आदमी भी जिंदा हो जाएंगे। हश्र के मैदान में खुदा ताला के सामने पेशी होगी, हिसाब लिया जाएगा। जिस दिन यह काम होंगे उस दिन को यौमुल हश्र यानी जमा किए जाने का दिन, यौमुल जजा और यौमुद्दीन यानी बदला देने का दिन और यौमुल हिसाब यानी हिसाब का दिन कहते हैं। सवाल, ईमान मुफस्सल में जिन 7 चीजों का जिक्र है, इनमें से अगर कोई दो एक बात को ना माने तो क्या वह मुसलमान हो सकता है? जवाब, कभी नहीं, जब तक खुदा ताला की तौहीद और पैगंबरों की पैगंबरी और खुदा ताला की किताबों और खुदा ताला के फरिश्तों और कयामत के दिन और तकदीर और मरने के बाद जिंदा होने को ना माने, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। सवाल, हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद बयान फरमाई है। इनमें फरिश्तों और खुदा ताला की किताबों और क़यामत और तकदीर वगैरह का कोई बयान नहीं है। जवाब, इन 5 चीजों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का बयान है और जब कोई आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो उसे आपकी बताई हुई सारी बातें माननी जरूरी होंगी और खुदा ताला की किताब जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं इस पर ईमान लाना जरूरी होगा। यह सब बातें जिनका ईमान मुफस्सल में बयान है खुदा ताला की किताब
قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے آدمی کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب العالمین ہمارے سارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیجئے۔ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔